فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد 81428774 شہر حیدرآباد میں دوسرے مرحلے کے میٹرو ریل کے کاموں کے لیے جائیدادوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور قدم اٹھایا گیا ہے۔ کلکٹر نے MGBS سے چندرائن گٹا تک 7.5 کلومیٹر میٹرو لائن کے لیے درکار جائیدادوں کے حصول کو منظوری دے دی۔ اس کے ساتھ ہی پرانے شہر حیدرآباد میں میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے جائیدادوں کے حصول کا کام شروع ہو جائے گا۔ اس روٹ پر سڑکوں کی توسیع اور اسٹیشنوں کی تعمیر کے لیے جائیداد حاصل کیے جائیں گے۔ حیدرآباد میٹرو ریل کارپوریشن پہلے ہی اراضی کے حصول کے لیے نوٹس دے چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت کے مطابق میٹرو مرحلہ 2 کوریڈور کے لیے MGBS سے چندرائن گٹا تک 200 سے زیادہ جائیدادوں کو حاصل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن TSPSC گروپ 3 کے امتحان میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو زیادہ رسائی فراہم کرنے کے لیے تلنگانہ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TGSRTC 17 نومبر اتوار سے 18 نومبر پیر کے درمیان شہر بھر کے امتحانی مراکز تک مختلف مقامات سے خصوصی بسیں چلائیں گی۔ ہفتے کو TGSRTC کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں خصوصی بسیں امیدواروں کو اپنے امتحانی مراکز پر وقت پر پہنچنے کو یقینی بنائے گی، جو کہ اتوار کو صبح 10 بجے سے دوپہر 2:30 بجے اور دوپہر 3 بجے سے شام 5:30 بجے تک اور پیر کو صبح 10 بجے سے 12:30 بجے کے درمیان ہونا ہے۔ TGSRTC کے بیان میں کہا گیا ہے کہ خصوصی بسیں امتحانات کے بعد امیدواروں کو ان کی منزلوں تک واپس لے جائے گی۔ بینک سے نکالی گئی 1 لاکھ روپے کی رقم کو اسکوٹی کی ڈکی سے 2 نامعلوم چوروں نے چوری کر لی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے کوٹلہ ٹاؤن میں پیش آیا۔ یہ واقعہ ہفتے کے روز اس وقت پیش آیا جب نامعلوم افراد نے ایک شخص کی وہ رقم چرا لی جو اس نے ابھی بینک سے نکالی تھی۔ تفصیلات کے مطابق متاثرہ شخص نے بینک سے نکالے گئے 1 لاکھ روپے اپنی 2 ویلر گاڑی کی ڈکی میں رکھے اور دیگر چیزوں کی خریداری کے لیے چلا گیا۔ چوروں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈکی کھولی اور نقدی چرا لی۔ جب متاثرہ شخص واپس آیا تو اپنی رقم غائب دیکھی تو فوراً پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ چوروں کی اس چوری کی واردات کے کچھ مناظر قریبی CCTV کیمروں میں قید ہو گئے جو تفتیش کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ نارتھ زون پولیس نے ہفتہ 16 نومبر کو مختلف علاقوں کے چرچز کے 80 سے زیادہ نمائندوں کے ساتھ ایک بیداری میٹنگ کے دوران بتایا کہ حیدرآباد کے چرچز کو اسٹریٹجک مقامات پر CCTV کیمرے نصب کرنے اور اجتماعی اوقات کے دوران تربیت یافتہ چوکیدار کو تعینات کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ان سے کہا گیا کہ وہ صفائی کو ترجیح دے، خاص طور پر ویسٹ فوڈ کو ہٹانے، صحت کے خطرات کو روکنے اور احاطے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے خدشات کو اجاگر کرتے ہوئے پولیس نے نمائندوں پر زور دیا کہ وہ نوجوانوں کو مشورہ دے اور انہیں منشیات کے غلط استعمال اور سائبر کرائم کے خطرات سے آگاہ کرے۔ نوجوان نسل کے لیے محفوظ ماحول پیدا کرنے کے لیے فائل کمیونٹی کی شمولیت کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ صدر نشین ریاست تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے کہا کہ مہاراشٹر میں انڈیا اتحاد جماعتیں 160 سے زیادہ اسمبلی حلقوں میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے حکومت تشکیل دیں گے۔ NDA حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو گئی ہے۔ عوام کانگریس، شردا پوار NCP، ادے ٹھاکر کی شیو سینا پر بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ مہاراشٹر کانگریس امور کے انچارج رمیش چنتلا کی ہدایت پر صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی اضلاع ناندیڑ اور لاتور کے مختلف اسمبلی حلقوں میں کانگریس پارٹی امیدواروں کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی ہفتہ اور اتوار 2 دن مہاراشٹر میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے۔ چیف منسٹر صبح حیدرآباد سے ناگپور روانہ ہوں گے۔ وہاں سے وہ چندرپور تک مقامی لیڈروں کے ساتھ انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ اس کے بعد چیف منسٹر کئی اور حلقوں میں انتخابی جلسوں اور روڈ شو میں حصہ لیں گے اور رات کو ناگپور واپس آئیں گے۔ دوسرے دن اتوار کی صبح چیف منسٹر ناگپور سے ناندیڑ پہنچیں گے اور نیاک گاؤں، بھوکر اور شولہ پور حلقوں میں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے اور اسی رات حیدرآباد واپس آ جائیں گے۔
इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत हुकूमत हिंद के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने इंशफाक किया है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के कवानीन को मुताल्ला करने का अमल क्लियरेंस के आखिरी मरहले में है और जल्द ही हुकूमत इसको मुताल्ला करेगी। इन्होंने हफ्ते के रोज हैदराबाद के ASCI कैंपस में मुनक्किदा एक तकारीब के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI के एजाजी विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर S चक्रवर्ती की तहरीर करदा किताब प्राइवेसी राइट एंड डेटा प्रोटेक्शन ट्रस्ट ओवररीच एंड एरोजन का लॉन्च किया। 25 साला शख्स को कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत चंदूलाल बरादरी के करीब एक मकान से 1,45,000 मालियत के सोने के जेवरात की चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस ने नूरुल्लाह के कब्जे से 2 तोले 8 ग्राम सोने की एक जंजीर, 4 तोले सोने की 2 चूड़ियां, 7 ग्राम की चेन और तकरीबन 8 ग्राम सोने की 5 अंगूठियां बरामद की। मुलजिम की शिनाख्त नूरुल्लाह हुसैन उर्फ नूर साकिन बडलगुड़ा की हैसियत से की गई। इतवार और पीर को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 3 सर्विस की भर्ती के इम्तिहानात में 5,36,000 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करने वाले हैं। इम्तिहानात रियासत भर में 1,401 मराकज में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होंगे। सुबह के सेक्शन के लिए सुबह 8:30 बजे और दोपहर के सेक्शन के लिए दोपहर 1:30 बजे से उम्मीदवारों को मरकज में दाखिल होने की इजाजत होगी। सुबह के सेक्शन के लिए सुबह 9:30 बजे और दोपहर के सेक्शन के लिए दोपहर 2:30 बजे गेट बंद होने के बाद किसी उम्मीदवार को मरकज में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। चवेल्ला के रुकने पार्लियामेंट कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और BRS मुस्लिम वोटों की खातिर मुल्क को फरोग करने से दरीक नहीं करेगी। आज यहां सहाफियों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए वक्फ बोर्ड तश्कील दिया था। कुंडा विश्व रेड्डी ने कहा कि औरंगजेब की पॉलिसियों से लोग अब भी परेशान हैं। औरंगजेब ने ज़बानी अहकामात के जरिए जमीनों पर कब्जा किया होगा, लेकिन अब कुछ लोग दस्तावेजात का बंडल दिखाकर दावा कर रहे हैं कि ये जमीनें इनकी है। इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड मुल्क के अवाम के साथ एक जालिमाना मजाक कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इस मजाक पर हंसना है या रोना है। कुछ लोग वक्फ एक्ट का इस्तेमाल करते हुए औरंगजेब की तरह जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को रांची में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि पहले मरहले की वोटिंग से ये साफ हो गया है कि झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने जा रही है। इख्तिदार में आने के बाद हमने 7 गारंटियों को नाफिज करेंगे, जिसका वादा हमने अवाम से किया है। कर्नाटक और तेलंगाना में हमने ऐसा करके दिखाया भी है। इन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहाद में मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से 2,500 रुपए देने की गारंटी दी है। बीजेपी इसे रोकने के लिए अदालत पहुंच गई है। इससे लगता है कि मरकजी हुकूमत गरीब और खवातीन मुखालिफ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा कि वो झारखंड जैसी छोटी सी रियासत के असेंबली इंतखाब में जिस तरह घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिला परिषद और कॉरपोरेशन के इंतखाब में भी घूमेंगे। वजीर आजम को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, बेरोजगारी के बारे में सोचना चाहिए। अदाकार गोविंदा की तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की वजह से वो महाराष्ट्र में अपना रोड शो दरमियान में छोड़कर चले गए। वो महाराष्ट्र के इंतखाबात की तशहीर करने आए थे। रोड शो में काफी भीड़ थी, लेकिन खराबी सेहत की वजह से इन्हें दरमियान में ही जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि गोविंदा शिव सेना के उम्मीदवार किशोर पाटिल की तशहीर करने पहुंचे थे और PM मोदी ने भी इनकी तारीफ की थी, लेकिन जब इन्होंने रोड शो के दरमियान में सीने में दर्द की शिकायत की तो इन्होंने खुद अपने हामियों को इसकी इत्तला दी। इन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला है। इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सीने में दर्द हो रहा है। अब मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए मुझे रोड शो को दरमियान में छोड़कर मुंबई जाना पड़ेगा। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने हफ्ते के दिन कहा कि इनकी पार्टी दस्तूर को मुल्क का DNA समझती है, लेकिन बरसर इख्तिदार बीजेपी और RSS के लिए ये एक खाली किताब है। मशरकी महाराष्ट्र के अमरावती में इंतखाबी रैली से खिताब में कायद अपोजिशन लोकसभा ने कहा कि दस्तूर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अरकान असेंबली की खरीदारी के जरिए रियासती हुकूमतें गिराई जा सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। दस्तूर में मुल्क के बड़े ताजिरों का 16 लाख करोड़ रुपए का
कर्ज माफ करना भी कहीं नहीं लिखा है। कांग्रेस दस्तूर को मुल्क का DNA समझती है, जबकि बरसरे इख्तिदार बीजेपी और RSS के नजदीक ये खाली किताब है। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के इस दावे के जवाब में ये बात कही कि कांग्रेस कायद अपनी इंतखाबी रैलियों में दस्तूर की जो कॉपी दिखा रहे हैं, इसके सहाफत खाली है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई मुल्क घेर मुहिम एक पेड़ माँ के नाम के तहत अब तक 1 अरब दरख्त लगाए जा चुके हैं। हफ्ते को मरकजी माहौलियत, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम एक अहम संगमेल तक पहुँच गई है। हफ्ते को इस मुहिम के तहत 1 अरब दरख्त लगाए गए हैं। इन्होंने कहा कि 5 जून आलमी यौम माहौलियत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई थी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम एक बड़े संगमेल पर पहुंच गई है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्रीन इंडिया की तामीर की मुहिम की हैरानकुन कामयाबी ये जाहिर करती है कि हम किस तरह मुआशियत और माहौलियत दोनों पर तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। 1 साल से ज्यादा मुद्दत गुजर जाने के बाद भी मणिपुर में हालात अब तक काबू में नहीं आ सके हैं। यहाँ जेरीबाम में लगातार तशद्दुद से मुतालिक खबरें सामने आ रही है। जुम्मा को भी 3 नाशें बरामद हुई। मणिपुर से आसाम सरहद के पास जो नाशें मिली है, इनमें 2 बच्चे और 1 खातून की है। इत्तला के मुताबिक कुछ दिन पहले ही एक कुंबे के 6 अराकीन का अगवा कर लिया गया था। ऑफिसरों के मुताबिक आसाम की सरहद पर नदी के किनारे ये नाशें मिली है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर अगवा का वाकया पेश आया था। हालांकि नाशों के शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। पुलिस ने बताया अभी तक ये तस्दीक नहीं हो सकी कि नाशे उन्हीं की है जिनका अगवा हुआ था या फिर किसी और की। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।